السلام علیکم ناظرین۔ موضوعات تو بہت سارے تھے جن پہ بات ہو سکتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن آج ایک ہنگامی طور پہ بات کرنی پڑ رہی ہے مجھے کہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ اخلاقی کرپشن لوگوں نے کس کس طریقے سے اس میں وہ شروع کیا ہوا ہے، بلیک میل کرنا باقاعدہ ایک مکروہ دھندا بن چکا ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور طریقہ ہے لوگوں کو لوٹنے کا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ ذاتی طور پہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ ایک ایچ بی ایل کا میرا اکاؤنٹ ہے، تو مجھے کال آتی ہے ایک موبائل نمبر سے۔ یہ آج سے 3-4 روز قبل کا واقعہ ہے۔ مجھے کال آتی ہے اور وہ جو موبائل سے کال آئی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم کراچی سے بات کر رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ ہمیں ویریفائی ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو فوری طور پہ کوئی تھریٹ ہے اس طرح کا کہ وہ کوئی اس میں سے پیسے نکلوا سکتا ہے۔ اب یہ ایک نفسیاتی طریقہ تھا کسی کو تیار کرنے کے لیے کہ جب اسے لگتا ہے کہ میرا پیسہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو میں نے چونکہ پہلے یہ پیغامات مجھ تک پہنچے ہوئے تھے اور یہ آگاہی بھی تھی، تو میں نے کہا یار آپ کا جو نمبر ہے نا یہ وہ تو نہیں ہے جو ان کا آفیشیل نمبر ہے، آپ کا نمبر تو موبائل نمبر ہے، پرسنل نمبر ہے، تو اس پہ میں یہ انفارمیشن آپ کو کیوں دوں گا؟ تو انہوں نے کہا جی چلیں کوئی بات نہیں، آپ نہیں دینا چاہتے تو ہم آپ کی وہ جو ان کی مین آفیشیل لائن ہے اس سے بات کروا دیتے ہیں۔ تو اتنی اسی دوران کال چل رہی تھی کہ تو مجھے وہ 111 اور 425 جو ایچ بی ایل کا نا ایک آفیشیل ہیلپ لائن پہ بھی وہ کال ہوتی ہے، وہ آ گیا فوری طور پہ اسکرین پہ۔ میں نے اس کو اٹینڈ کیا۔ اب جب میں نے اٹینڈ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ آپ انفارمیشن نہیں دے رہے، تو میں نے کہا چلیں آپ پوچھیں کیا انفارمیشن آپ کو چاہیے؟ تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی ساری یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے، انفارمیشن ہے، ہم آپ کے یہ کراچی ہیڈ کوارٹر سے بول رہے ہیں ایچ بی ایل کی جو آفیشیل آپ سے بات کر رہے ہیں، تو یہ واقعی ایک سیریس تھریٹ ہے آپ کو، آپ کے اکاؤنٹ کو، اور آپ کے یہ جو اے ٹی ایم کارڈ ہے یہ ذرا نکال لیں، تو کچھ انفارمیشن ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں یہ کوئی جینون مطلب بات ہے، اس میں کوئی فیک نہیں ہے کچھ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ میرے آئی ڈی کارڈ کے سارا نمبر بول دیا ہے، دیکھیں جی یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں اب آپ ایسا کریں کہ اپنا اے ٹی ایم کارڈ سامنے رکھیں اور اس کے جو پورا نمبر ہے نا وہ ٹیلی کروائیں ہمیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اس طرح سے تو نہیں کرواتا ٹیلی، میں اس سے بات کر لوں گا جو میری لوکل برانچ ہے یہاں پہ، تو آپ رہنے دیں، آپ کی مہربانی، میں کر لیتا۔ نہیں نہیں، یہ بہت ایمرجنسی والا کام ہے، اس دوران آپ کی وہ کوئی نکلوا سکتا ہے آپ کی اماؤنٹ اے ٹی ایم سے، تو یہ خطرہ ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں یقین تو ہم پہلے 8 فگرز بول دیتے ہیں، تو اگلے 8 پھر آپ بول دینا۔ اب بلیو می کہ یہ ایک اور نفسیاتی، ایک تو وہ نمبر ان کا فوری طور پہ، دوسرا یہ انہوں نے بالکل، میں نے اے ٹی ایم کارڈ سامنے رکھا تو انہوں نے پہلے 8 ان سے جو ہیں فگر وہ بول دیے۔ اب مجھے کہتے ہیں جی کہ آگے آپ بول لیں، اور میں جو میرے ساتھ ذاتی طور پہ ہوا وہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے بولنا شروع کیا، آخری 2 فگر رہ گئے، تو میری چھٹی اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ 2 ان سے بھی بول دیے تو اگر یہ فیک ہوئے تو آپ تو گئے سارے چیزوں سے محروم، یا جو وہ ان کا طریقہ واردات ہے آپ دے دیں گے انہیں یہ نمبر۔ تو میں نے کہا یہ مجھ سے نا آگے پڑھا نہیں جا رہا، یہ کوئی اس پہ نا نمبر فگر کلیئر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو کریں آپ جلدی سے نا اسکریچ کریں، صاف کر لیں۔ میں نے کہا یار نہیں پڑھا جا رہا، میں کہہ رہا ہوں نا، یعنی کہ میں ان کو اسٹریٹ فارورڈ نہیں کہہ سکا، تو میں نے اس طرح سے ایکسکیوز کیا۔ تو انہوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ بندہ نہیں آمادہ، یہ یعنی کہ اس وقت میرے
माइंड में 60% तक डाउट जो था कि ये मेरे साथ जो कर रहे हैं ना ये फेयर नहीं है। लेकिन साथ ये भी था कि इतनी तेज़ी के साथ वो नंबर उन्होंने हेल्पलाइन से करवा दिया जो उनका ऑफिशियल नंबर है HBL का। तो मैंने जब कहा कि नहीं मैं लोकल ब्रांच से, फिर मैंने कहा तो उन्होंने मुझे ना थ्रेट किया कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप तावर नहीं कर रहे हमारे साथ। तो उस वक्त मुझे ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जो इतना मेरे इंटरेस्टेड है नुकसान में कि मैं नुकसान से बच जाऊं, ये इतने हमदर्द हो नहीं सकते कोई भी कि वो मुझे इस तरह से थ्रेट कर रहे हैं और वो एक क्रिएट कर रहे हैं रिस्क की सिचुएशन। तो मैंने कहा सॉरी, आपने ब्लॉक करना है ब्लॉक कर दें, आपने कार्ड ब्लॉक करना है, अकाउंट करना है, जो भी है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अपने मौक़िफ़ पे हूँ कि मैं अपनी लोकल ब्रांच में जाके कर लूँगा इन्फॉर्मेशन शेयर। अब इस वक्त वो बेबस हो गए तो उन्होंने कॉल काट दी। अब ये हुआ कि मैं बैंक में गया, मुझे और भी कुछ काम था, बैंक स्टेटमेंट निकलवानी थी। तो मैंने उनसे ज़िक्र किया कि ये इस तरह से मेरे से, उन्होंने कहा ये तो मुझे भी हुआ है, मेरे साथ आया है। इवन जो मैनेजर था वो कहने लगा। तो मेरे जहन में आया कि अगर हर बंदा तो मेरी तरह कॉन्शियस या इस तरह से पहले से आगाह नहीं है, और ना ही उन्होंने मुझे एक और पॉइंट बताया जो मैं शेयर भी करना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि वो कहते हैं कि हमारी जो हेल्पलाइन है उससे हम कॉल किया नहीं करते कभी भी, वो सिर्फ़ सुनने के लिए है। तो एक तो आप नाजरीन को मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर उनकी हेल्पलाइन का नंबर कोई फ़ेक बना के, पता नहीं वो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, ये बैंक मैनेजर ने मुझे कहा कि वो ये नंबर उन्होंने फ़र्ज़ी बनाया है और ये क्वाइट क्लियर है कि हम हेल्पलाइन से कॉल नहीं करते किसी सारफ को भी, और अगर किसी को आए तो वो फेक होगी। तो ये मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। मैं मसरूफ़ हो गया, कोई 5-4 दिन इस बात को गुज़र गए, ये कॉल आई और उसमें मोबाइल नहीं था, वही लंबी चौड़ी जो नंबर है 111 पता नहीं, और आगे नंबर लंबा सारा जो बैंक का होता है। मैंने कहा जी, कहते हैं हम UBL की जो है ना मेन ब्रांच या हेडक्वार्टर वहाँ से बात कर रहे हैं, कराची से। अब चूँकि मेरे साथ पहले ये वाक़या हो चुका था, मैंने कहा जी फरमाएं। तो कहते हैं आपके अकाउंट आप यूज़ करते हैं या बंद किया हुआ है, यानी वो ये कंफर्म करना चाह रहे थे कि मेरा रनिंग है, फंक्शनल अकाउंट या डेड अकाउंट है। तो मैंने कहा नहीं, मैं कभी कभार करता हूँ यूज़ और उसमें मेरा रनिंग है। अच्छा, तो फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए हम कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। मैंने कहा जी फरमाएं। कहते हैं आप अपना नाम आपका, और इसी तरह से उन्होंने कहा कि वो जो ATM कार्ड निकालें। तो अब यहाँ पे बजाय इसके कि मैं वो लंबा चौड़ा आगे करता, चूँकि मैं ये सेकंड टाइम हो रहा था मेरे साथ, तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। तो हम तो वो बोल रहे हैं मेन लाइन से। अब मुझे चूँकि पहले बैंक मैनेजर ने बता दिया था कि ये हेल्पलाइन जो होती है ना, ये फ़र्ज़ी वो क्रिएट करते हैं, ख़ुद से बनाते हैं। तो मैं चूँकि वेल अवेयर था पहले से, तो मैंने कहा सॉरी। तो उन्होंने आगे से फिर मुझे थ्रेट किया कि आपका 5 साल के लिए ना अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप किसी और जगह पे भी नहीं खोल सकेंगे अकाउंट। तो मैंने फिर उन्हें, चूँकि एतमाद मेरा बड़ा और ज़्यादा, तो मैंने कहा आप मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दें और जो जो कुछ और भी करना है कर लें, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो क्यों जी? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि ये जो आपकी लैंग्वेज है ना, ये प्रोफेशनल नहीं है। कोई भी जो प्रोफेशनल बंदा बात करता है तो वो इस तरह से धमकी नहीं देता फौरी तौर पे, या धमकियों पे नहीं उतर आता कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। तो मैंने बात काट दी, कॉल काट दी, और फौरी तौर पे मैंने सोचा कि मुझे ये फौरी तौर पे ये वीडियो जो है ये अपने नाजरीन के लिए और दूसरे पब्लिक के लिए इसको ज़रूर रिकॉर्ड भी करना चाहिए और आगे स्प्रेड भी करना है। और आपसे भी ये दरख्वास्त है कि इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
मैं स्क्रीन पे वो नंबर भी दे दूंगा जिस तरह से वो किया है उन्होंने मुझे, और अगर मुमकिन हुआ तो वो रिकॉर्डिंग भी शायद मैं देखूंगा, अवेल हुई तो ज़रूर वो भी लगा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइबर क्राइम में आता है, और ये हमारे जो इदारे हैं, क्या उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ नहीं हो रहा? वैसे तो वो FBI वाले या बाकी इदारे जो हैं वो आम, जो आपका एक शहरी है वो अभी तक उसमें डॉक्यूमेंटेशन में उस तरह से उसकी नहीं है स्किल, या वो नहीं आती यूज़ टू, तो उसको तो नोटिस बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये जो सिम जारी होती है और वो जो कंपनी करती है जारी, और उससे आगे वो जो सारा कुछ ये कर रहे हैं, क्या ये हमारी हुकूमत के कोई ऐसे इदारे नहीं हैं कि जो इनका सद्देबाब कर सकें? और मैं अब हैरान हूँ कि अगर उस दिन मैं वो 2 फिगर बोल देता तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करते। अब चूँकि उसमें से अकाउंट में से पैसे ही निकलवा लेने थे उन्होंने, और क्या करना था, खाली कर देना था, जो मतलब कम से कम यही करना था उन्होंने। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो इस तरह से उनको फेस कर सके, या बर वक्त उनको इदराक हो जाए और वो इस से बच सकें। क्या ये चोरी में, डकैती में या क्राइम में नहीं आता? और इसकी इन्वेस्टिगेशन या इसके ख़िलाफ़ जो एक फ़ोर्स है उसका बरूए कार आना, ये स्टेट की या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है? ये है मेरे कुछ सवालात, और वो तो हुकूमतों के काम है, स्टेट का काम है। पहले हम बहुत ज़्यादा अग्रीव्ड हैं कौन सा कोई इदारा अपनी डगर पे है और काम कर रहा है, तो कानून पसंद शहरी ही हमेशा वो कुचला जा रहा है और मुतासर हो रहा है। तो आप भी ये अपने तौर पे कम से कम अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आप अपनी ब्रांच से रब्ता करें, और फिज़िकली जाके रब्ता करें, या कोई पर्सनल आपका बैंक में है वाकिफ़ तो उससे बात करें। वो जिस तरह की भी बात करें, जैसे भी वो आपको एतमाद दिलाएं, आपने ये डाटा शेयर नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी समझा मैंने, बड़ी सेंसिटिव ये मुझे लगी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की। अल्लाह ताला आप सब की इज़्ज़त जान माल को महफूज रखे, आमीन।